Hi friends, good afternoon one and all. This is our continue lecture. This is our bookkeeping and accountancy second chapter's last lecture. Total 6 lecture I have taught you in our bookkeeping and accountancy second chapter, that means accounts of not for profit concerns each and every term, each and every important adjustment. Then after I explain you, I taught you specimen of income expenditure account and balance sheet, specimen of receipt and payment account. So yes, all of you watch each and every video. Yes, I know all of you watch. Yes, yes, I know. Okay, good. Again, warm welcome. Our last lecture. Myself, Mrs. Sheetal Kaviraj Jadhav, teacher of BYK College. Last video, I explained you if you are given a capital fund in the problem, so how to solve the not-for-profit concern problem. Last video, I explained you in the board exams paper how to solve. In this video, I explain you how to solve if you are not given a capital fund. Okay, this is the question, this is the receipt and payment account. So that means this is the question and this is the additional information means adjustment. Student, if you are given a problem, so first you read carefully. In this problem, first you see in which year you are given. Because of in this problem, yeah, a not-for-profits problem, if you are given a 3 years, that means for example here it is given year ended is the 31st March 2020. So that means what's the previous year? Yes, tell me. Yes, 2018-19. And what's the current year? Yes, 31st March 2020 is the year ending means what's the starting? 1st April 2019 to 31st March 2020. So 1920 is the current year. And what's the next year? 21. Yes, 2021. Correct. But here it is you are given 18. Here it is given 2018-19 and 1920. So first you see here in which year you are given. Then after remember each and every adjustment means additional informations, two effects. Remember. Okay. Then after if you are given in the problem means in the receipt and payments account, if any adjustment, for example this one, this is the yes, hidden adjustment. For example, here it is see 8% fixed deposit with Bank of India rupees 50,000. This is the hidden adjustment. So that means in these adjustments also the two effects. 8% that means this is the rate of interest. Remember. Okay. Next one what you will see here it is given the donation, but if you are given in the bracket if any instruction, yeah, if any condition, so that means for example donation fifth adjustment given, donations should be capitalized. See here in the additional information 60% donation should be capitalized. तो यानी कि ये क्या हुआ डोनेशन का क्या हुआ एक yes adjustment है means two effects है. In the last video and last one also I explain you donations two types. Yes, yes, remember first one general donation and second one specific donation. General donation treated as a revenue income.
will be show where income and expenditure accounts credit side. Okay. And if you are given a specific donation, so that means donation are sometimes given for a specific purpose. So, for example, donation for building fund, donation for prize fund, donation for sports tournament. Okay, for example. Okay, so that means that donation should be what say specific donation and show on the liability side of balance sheet. But if you are not given nothing any given without any condition, so that donation should be treated as a revenue income, and where we show will be show on a income and expenditure account. Remember, समझ में आ रहा है? Okay, so that means general donations given without any condition. Here it is, donation 60% should be capitalized, so that means 40% donation क्या हो गया? रेवेन्यू हो गया, जनरल डोनेशन हो गया. ओके ओके, और 60% कैपिटलाइज हो गया, मीन्स रेवेन्यू इनकम एंड यस कैपिटल इनकम. कितना हो गया? 40% रेवेन्यू एंड 60% शुड बी कैपिटलाइज, मीन्स कैपिटल इनकम में जाएगा, उसमें वो ऐड हो जाएगा. ये देखना है. ठीक है. फर्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का देख लिया, सब्सक्रिप्शन का भी एडजस्टमेंट दिया है, डोनेशन दिया है, ये सबसे पहले देखना है. सी हियर वन बाय वन. फॉर एग्जाम्पल, first you draw the income and expenditure account. This is your problem. Yes, and this is your additional information. Remember student, first you write down, yes, in the books of Sitara Clubhouse, Nasik, income and expenditure account for the year ended 31st March 2020. So that means this is the 31st March 2020 is a current year. Then after write down here debit, credit, expenditure side, income side. Okay. Amount rupees is also the important. Then now you draw the income expenditure account. Now we see one by one each and every items. This is the receipt side, this is the payment side. Okay. To balance brought down. Here it is given the opening balance, cash balance दिया है, and here it is given by balance carried down 33,300. दो balances दिया है, तो उसमें से कौन सा लेना है? Yes, already I told you. Yes, by balance carried down means this is the closing balances, where we write down balance sheet asset side. Okay, so see here next one, to subscription. स्टार किया है यानी कि क्या देखना है इसमें? टू इफेक्ट्स है. रिमेंबर, प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले क्या करना है? एडजस्टमेंट, एक एक एडजस्टमेंट चेक करना है, और ये एडजस्टमेंट का इफेक्ट कितना है? 2 है. तो जो जो जहां पर है उसको स्टार करना है. जैसे कि फॉर एग्जांपल सी है, फर्स्ट एडजस्टमेंट इज सितारा क्लब हाउस हैज 5,000 मेंबर्स paying annual subscription rupees 50 each. Okay, so first you write here by subscription amount is given in the receipt 2,30,000. Here it is given the 2 years, 18-19 means last year, previous year, and 19-20 means current year. इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अपने को सिर्फ क्या लेना है? करंट ईयर के एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू इनकम ही लेना है, इतना याद रखो. और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा. ओके, यानी कि रिसीट एंड पेमेंट में आपको सब कुछ दिया जाता है, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हुआ, डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी दिएंगे, कैपिटल इनकम वगैरह सब कुछ इंक्लूड रहता है उसमें, सब देते हैं. बट यहाँ पर आपने को क्या करना है? उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या लिखते हैं हम? व्हाट यू फाइंड ट्रांसफर
ओनली रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड कैपिटल कहा जाएगा बैलेंस शीट के एसेट एंड लायबिलिटी में। यस, समझ में आ रहा है? ओके, सो दैट मीन्स हियर इट इज गिवन 2019-20, दिस इज द करंट ईयर। कितना है? 2,30,000 इतना सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है, यहाँ पर लिखा। लेकिन उन्होंने क्या दिया है कि सितारा क्लब हाउस में टोटल कितने मेंबर्स हैं? यस, 5,000 ₹50 ईच, हर एक ने क्या किया है? एनुअल फीस पे किया है। सो दैट मीन्स 2,50,000 क्या आना चाहिए था? सब्सक्रिप्शन आना चाहिए था, राइट? बट कितना रिसीव्ड हुआ है? ओनली 2,30,000. So that means 20,000 is a outstanding. आया समझ में? ये 2,000 कैसे आया? समझ में आया? यानी कि बहुत बार ये ऐसा बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले ही आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में चेक करना है। If you are given a directly subscription, so no problem. But here it is given the Sitara Clubhouse has 5,000 members paying annual subscription ₹50 each. उसको कैलकुलेशन कैसे किया यहाँ पर मैंने दिखाया, 5,000 into 50, so that means 2,50,000 is a actually current year subscription. हो गया? Then next is donation. Donation 60,000. Already I told you now, 60,000 given, and here it is in this adjustment, fifth adjustment, see here. 50% entrance fees and 60% of donation should be capitalized. तो क्या करना है? यहाँ पर 60,000 का 60% निकाला, कितना हुआ? 36,000. So that means only 24,000 is the, yes, revenue donation. And 60% क्या करना है? Capitalize, where we transfer? Yes, balance sheets, liability side. कैपिटल फंड में हम क्या करेंगे? 60% ऐड करेंगे, 40% यहाँ पर दिखाया है। Yes, समझ में आया? Then next one, see here again receipt side, to receipts from entertainments 40,000 as it is, nothing any adjustment. स्टार है क्या? नहीं है, तो डायरेक्ट लिखा। To interest on FD means fixed deposit, स्टार है, स्टार है मीन्स कुछ तो एडजस्टमेंट है। देखो क्या एडजस्टमेंट दिया है? सी हियर, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट का हमने क्या किया है? सी हियर, यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है? 3,000 फिक्स डिपॉजिट का 3,000 रिसीव किया, राइट? बट सी हियर 8% फिक्स डिपॉजिट विद बैंक ऑफ इंडिया में उन्होंने 50,000 क्या किया है? डिपॉजिट किया है फिक्स डिपॉजिट में। सो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया? 8% के हिसाब से 50,000 इंटू 8%, दैट मीन्स 4,000. सो दैट मीन्स 4,000 अपने को कितना मिलना चाहिए था? देखो सी हियर, 4,000 ये कैसे आया? 3,000 रिसीव्ड किया इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, यानी कि 4,000 आना चाहिए, तो ये क्या हो गया? 1,000 इज ए, यस, आउटस्टैंडिंग। तो इसलिए हमने इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट जो यहाँ पर रिसीट एंड पेमेंट में दिया था उसमें क्या किया? 1,000 ऐड किया। ये 1,000 कैसे आया? फर्स्ट यू फाइंड आउट द 8% इंटरेस्ट, वो कितना आया? 4,000। यहाँ पर देखो मैंने बताया है आपको, ये 4,000 कैसे आया पता चला? सो दिस 4,000 में से 3,000 अपने को मिला है, वी हैव रिसीव्ड इन दिस ईयर, सो दैट मीन्स 1,000 इज ए आउटस्टैंडिंग। एंड सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा, यस, बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। यहाँ पर जो 8% फिक्स डिपॉजिट है उसमें ऐड हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन, टू एंट्रेंस फीस, यहाँ पर भी स्टार किया है, कितना है? 50,000। तो एंट्रेंस फीस के बारे में भी क्या दिया है? सी हियर,
Entrance fees 50,000. This is the entrance fees and 50%. Fifth adjustment here. 50% entrance fees should be capitalized. यानी कि जो 50,000 अमाउंट है उसका 50% क्या करना है, रेवेन्यू इनकम है, इसलिए यहाँ पर 25,000 दिखाया। ये ओके, ये जो 25,000 कैसा है पता चला, 50% कैपिटलाइज हुआ। फिर ये 50% कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के यस लायबिलिटी में जाएगा। कैपिटल फंड में हम एंट्रेंस फीस क्या करेंगे, ऐड करेंगे। समझ में आया? ओके, देन नेक्स्ट, टू इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपीज। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट सी 1,000 रुपीज है, यहाँ पर 2,000 रुपीज एड आउटस्टैंडिंग किया है। सी इन दिस दियर, ये 2,000 कैसे आया, see this adjustment. Income, fourth adjustment, see, income accrued on investment rupees 2,000, यानी कि 1,000 इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हमने क्या किया है, रिसीव किया है, और 2,000 अभी भी यस ड्यूज है, मीन्स नॉट पेड, आउटस्टैंडिंग है, इसलिए ये 2,000 क्या किया, यहाँ पर ऐड किया है। सो दैट मीन्स एक्चुअली इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कितना आना चाहिए, 3,000 करंट ईयर का, और ये 2,000 कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। सो दैट मीन्स हियर इट इज, वी हैव कंप्लीटेड रिसीट साइड। सी हियर पेमेंट साइड, फर्स्ट वन गिवन बाय सैलरी, सैलरी दिया है, कितना दिया है, यस 50,000, 50,000 दिया है, लेकिन यहाँ पर मैंने स्टार किया है बिकॉज ऑफ द एडजस्टमेंट। सी हियर दिस सेकेंड एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग मीन्स क्या करना है, अपने को ऐड करना है, अगर प्रीपेड है तो क्या करेंगे, यस डिडक्ट करेंगे। सो आउटस्टैंडिंग फर्स्ट वन, सी हियर इन द एक्सपेंडिचर साइड 50,000 salary and outstanding 12,000. So that means total salaries amount is 62,000. ये आउटस्टैंडिंग कहा जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरी, दिस इज द एक्सपेंसेस। ओके, सैलरी हो गया। देन लाइटिंग, यहाँ पर कोई स्टार है क्या, पहले देखने का, स्टार किया है तो अपने को आइडिया आ जाती है कि आपको इसको टू इफेक्ट्स है। लाइटिंग एज इट इज 10,500 लिखा, जनरल एक्सपेंसेस दिया है 20,000 एज इट इज लिखा, बाय मेंटेनेंस चार्जेस है 40,000 एज इट इज यहाँ पर लिखा है, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 7,000, मीन्स जैसे ही जितना भी पेमेंट हुआ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो सब के सब एज इट इज एक्सपेंडिचर साइड में राइट डाउन करो, इफ नथिंग एनी एडजस्टमेंट। अगर एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड, उसका 2 इफेक्ट करना है। समझ में आया? हो गया, सब पेमेंट्स हो गए। फिर भी एक बार चेक करने का कुछ रह गया क्या, देखो, प्रिंटिंग है, स्टेशनरी हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, इन्वेस्टमेंट ये कहा जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। 8% फिक्स डिपॉजिट जो है हमने यहाँ पर लिया, और ये बैलेंस जो है कैश बैलेंस, वो कहा जाएगा बैलेंस शीट के एसेट में। ओके, उसके बाद एक एक एडजस्टमेंट चेक करो। फर्स्ट एडजस्टमेंट का इफेक्ट हो गया, सेकेंड हम बाद में बताती। देन थर्ड वन, सी हियर, दिस इज द थर्ड एडजस्टमेंट। क्या दिया है, ऑन 1st April 2019 the asset should be stood as under land and building rupees 70,000 and furniture rupees 45,000. This is the opening balances. ये जो फिक्स एसेट है उसके ओपनिंग बैलेंसेस दिया है। ये किस लिए दिया है, बिकॉज ऑफ व्हेन वी फाइंड आउट दी कैपिटल फंड, वहां पर ये काम आ जाएगा। क्योंकि आपको प्रॉब्लम अगर ठीक से आपने रीड किया तो पता चलेगा कहीं पे भी कैपिटल फंड दिया नहीं है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, करना है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। सो ओनली फर्स्ट यू सी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, अभी अपने को क्या करना है,
डेप्रिसिएशन निकालना है, डेप्रिसिएट द अबो एसेट एट 10% पर एनम, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग का 70,000 पर 10% निकाला तो यहाँ पर लिखना है टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 7,000 एंड फर्नीचर 4,500, 10% है इसलिए इजीली 45,000 का कितना आया 4,500, सो दैट मीन्स द टोटल डेप्रिसिएशन इज 11,500। ये हो गई एडजस्टमेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, फोर्थ भी कंप्लीट किया है हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा है, फिफ्थ भी कंप्लीट हुए हैं, एंट्रेंस फीस एंड डोनेशन दोनों का भी इफेक्ट हो गया है, सब्सक्रिप्शन का भी मैंने बताया और फिक्स डिपॉजिट। सो यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो दिया था उसका सबका एक एक एडजस्टमेंट विथ एडजस्टमेंट का इफेक्ट हो गया है। What's our next step? Find out the profit means surplus या deficit. So then after you check it here in which side is greater than. Expenditure more than है कि income. So here it is income side is the more than. 3,46,000 is the income side total. Okay. And then expenditure side की total जो है उसमें से minus किया तो क्या आ गया 1,60,000, दिस इज द सरप्लस। अगर यहाँ पर ये साइड ज्यादा होती है, एक्सपेंडिचर इज मोर देन होता तो क्या आता, डेफिसिट आता। ओके, सो 1,60,000 ये कहाँ पर जाएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में, और कहाँ पर किसमें ऐड करना है, या ऐड करना है किसमें, सरप्लस में। यस, वेरी गुड। So all of you understood how to find out the surplus, how to create, how to find transfer income and expenditure accounts, all the revenue income and revenue expenditure. So see here, next one is the balance sheet. Okay, here it is given in the balance sheet. Balance sheet as on 31st March 2020. First you write here. Then this is the liability side, this is the asset side. Okay. Capital fund अपने को अभी क्या करना है, find out करना है. How to find out? See here in this working note. Here, see here. Calculation of capital fund. आपको अगर capital fund दिए या नहीं है तो आपको एग्जाम में भी वर्किंग नोट दिखानी है. First you find out the capital fund. So see here. First, this is the opening balance sheet. Already you have given a opening balances, cash in hand, outstanding subscription, land and building, opening balances जो दिया था, और furniture 45,000. So total is 1,51,800. उसमें से जो outstanding expenses थे 25,000 हमने क्या किया है, डिडक्ट किया है, और टोटल एसेट्स इसमें से लायबिलिटीज क्या करना है, डिडक्ट करके जो अमाउंट आ गई है उसको क्या बोलेंगे हम, कैपिटल फंड। टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल फंड। सो दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। कितने आ गया कैपिटल फंड, 1,26,800। यस, समझ में आया? देन ये 1,26,800 हमने कहाँ पर लिखा, यहाँ पर 50% एंट्रेंस फीस, जो 50% था हमने कहाँ दिखा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अभी 50% कहाँ पर जाएगा, कैपिटल फंड में 25,000 हमने ऐड किया है। 60% डोनेशन, 40% कहाँ पर लिखा हमने, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में। डोनेशन में हमने क्या किया था, ये 60% वहाँ डिडक्ट किया था, ओके, और ये यहाँ पर 60% कैपिटल फंड में ऐड करना है। देन आफ्टर वी फाइंड आउट नाउ सरप्लस 1,60,000, ये इसमें ऐड किया, और फिर टोटल जितने भी कैपिटल फंड का जो अमाउंट है, यानी कि बैलेंसिंग फिगर में ये ऐड करके अभी कितना कैपिटल फंड आ गया, 3,47,800।
Yes. Then आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट में दिया था, फर्स्ट सेकंड एडजस्टमेंट में 12,000 फर्स्ट इफेक्ट हमने दिखाया इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में, सैलरी में हमने आउटस्टैंडिंग ऐड किया था, दिस इज द सेकंड इफेक्ट 12,000, ये हो गया आउटस्टैंडिंग सैलरी। हमेशा याद रखना है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर है तो कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग इनकम है तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट में। अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो एसेट में जाता है, बट आउटस्टैंडिंग सैलरी दिस इज द एक्सपेंडिचर, सो कहाँ पर जाएगा, लायबिलिटी में। समझ में आ रहा है, याद रखो। ये हो गया अपना लायबिलिटी साइड इज ओवर, देन एसेट साइड। Cash in hand 33,300, this is the closing balance, already I told you now in the last slide. Then investment, you are given a in the balance sheet receipt and payment account 1,50,000 and accrued income 2,000 we are added, means total investment is a 1,52,000. समझ में आ रहा है, okay good. Then next 8% fixed deposit amount is 50,000 and add outstanding interest 1,000. Already I told you how to find out. That means the total fixed deposit amount is a 51,000. ये outstanding है इसलिए हमने इसको क्या किया है, यहाँ पर add किया है. Then outstanding subscription 20,000. Land and building amount given 70,000 and less depreciation 10%. फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पर गया है, ऑलरेडी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और यहाँ पर सेकेंड इफेक्ट में 70,000 में से 7,000 क्या किया, माइनस किया. सो व्हाट इज द एक्चुअली अमाउंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, 63,000. फर्नीचर 45,000, लेस depreciation, same process, 4,500 10%. So what's the actual amount? 40,500 is the furniture amount. Yes, बोलो अभी समझ में आया. एक एक एडजस्टमेंट चेक करना है. फर्स्ट इफेक्ट हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई. ये फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पर गया, समझ में आया ना. 5,000 मेंबर्स का जो रिमेनिंग था आउटस्टैंडिंग, कहाँ पर दिखाया हमने, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग, ये देखो. देन आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई, ये लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, ये ओपनिंग बैलेंसेस लिया हमने 45,000 ये लिखा. ओके. देन डिप्रिसिएशन 10% निकाला. देन इनकम एक्रूड इन्वेस्टमेंट है तो इसमें हमने इन्वेस्टमेंट में एक्रूड इनकम जो है ये देखो इसमें हमने ऐड किया. ये एडजस्टमेंट भी हो गए. 50% एंट्रेंस फीस यहाँ पर लिया है. देन 60% डोनेशन, यस यहाँ पर लिखा है. हो गया. अभी कुछ रह गया क्या, चेक किया. ईच एंड एवरी आइटम्स वी ट्रांसफर इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट. एंड व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, यस टोटल. ओके. So if your liability and asset sides both are the equal, means correct, same amount, so that means your problem is correct. Okay. So here it is. What's the total? You calculate each and every items. Yes, all of you. Total किया, कितना आया, 3,59,800. So that means each and every items, each and every adjustment is clear now. Yes, very good. समझ में आया. एक एक adjustment again and again you write. Again you solve this problem. Okay. If any doubt, then after, yes, you call me, you ask me. If any, you write your comments in our YouTube's link. Thank you so much. Now our second chapter, not for profit concern, is over. All of you understood each and every term, each and every adjustment? Yes. I again request you watch each and every video again.
and you draw again and again specimen. You solve each and every problem, textbook problem, yeah, unsolved problem. Okay. Then after I give you the OPT test and assignment also. You solve that unsolved problem means assignment. In this, that assignments you draw, you solve, you write each and every day. Practice is very important. Okay? Yes? Okay, very good. Good. And thank you so much. You watch each and every video. Yes, good. Yes. Okay? Take care. And thank you so much again. Okay, bye. Have a good day. Hmm?